हमने आज तक बहुत सी बार ऐसे देखा है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम हो, नवोदय एग्जाम हो या फिर आपके ओलंपियाड एग्जाम्स हो, तो उसमें एक जनरल टॉपिक हमें हमेशा देखने को मिलता है जो कि इंडाइसेस. Yes, indices. So today we are going to study about the certain laws of indices. I will tell you, if you will prepare these laws of indices in grade 7th and 8th, which is included in the syllabus of the state board as well as in the syllabus of your CBSE curriculum. So this video will be very useful for all the students, those are there in class 7th and 8th, as well as those are giving the various examinations of various organizations. So for you this video will be very useful, so be with us till the end of the video, so you will understand the basic things of the indices. Indices के जो कुछ भी rules है वो हम पूरे सीखने वाले हैं, एंड एट द एंड आपको सभी रूल्स विद एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, विच विल बी रिक्वायर्ड इन द हायर क्लासेस आल्सो. आप 11-12 में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कौन से भी क्लासेस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वंस यू हैव स्टडीड दिस इंडाइसेस, दिस विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ इन वेरियस क्लासेस. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. So today's video we are going to study the laws of indices. हम आज laws of indices सीखने वाले हैं. तो इसमें laws of indices मतलब क्या, या फिर indices मतलब क्या? कोई भी चीज या फिर कोई भी नंबर हम एक उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 to the power 2. 3 to the power 2, it means what? 3 we have to multiply 2 times over there. But this is just for the one number. But if two things, okay, two numbers are coming together, then how it is to be managed, how these laws to be utilized, where, that part we have to discuss. Many of the times it is seen that the big examples are there, बड़े बड़े examples होते हैं, फिर भी वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, 2-3 लॉज का यूज करके हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई दिस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज RK Output. Let us start the first law over there. What is first law? If you will see it carefully, that is m to the power n, m to the power m multiply by m to the power n. So this what it means, इसका मीनिंग क्या है, that is equal to a to the power m plus n. अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए this a is called it as a base of the indices. indices का बेस किसे कहा जाएगा, a को कहा जाएगा, और जो ऊपर आपको उसके सिर पर जो पार्ट दिख रहा है, that is called it as a power of that. पावर मतलब क्या, वो उतनी तरफ उससे मल्टीप्लाई में है. सो इसका मतलब क्या, a कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ m टाइम. ओके, वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल्स आल्सो. सो लेट अस सी द फर्स्ट रूल. व्हाट इज द फर्स्ट रूल, दैट इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n. अगर बेसिस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स का एडिशन होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देख लीजिए यहाँ पर बेस सेम है. इफ द बेस इज सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट एंड बोथ द नंबर्स or both the bases are in the multiplication, then that will be considered as a addition. We have to do it the addition of the powers over there. Let us see the example of first question, that is 2 to the power 5 multiply by 2 to the power 3. देखिए यहाँ पर दोनों के बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 to the power 5 plus 3. So what is the answer, that is 2 to the power 8. So what will be your answer, that is 2 to the power 8. Understood the first rule? Let us go to the second rule. Now अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के बारे में. Now we have to see for the division. If bases are same, वापस हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, bases are same and the powers are different, then and if the division is given, then what we have to do, we have to subtract the powers from the each other. देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर यहाँ पर बेसिस सेम है. बेस क्या दिया है यहाँ पर, ए दोनों तरफ बेस दिया गया है, दोनों के बीच में डिवीजन है, दोनों का पावर अलग है, पावर का सब्ट्रैक्शन होगा. सो यू कैन सी दैट व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस और व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, द a to the power m minus n. इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर्स का एडिशन, डिवीजन होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन. लेट अस सी. So this is, यहाँ पर देख सकते हो आप, the powers are bases are same and division is given. So it means what, 5 to the power 7 minus 3. So what will be the answer, 5 to the power 4.
इसका आंसर क्या होगा 5 to the power 4. Let us go to the third rule. पावर के पावर, पावर के पावर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पावर के पावर, इसका मतलब क्या? यहां पर एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. वी आर गोइंग टू स्टडी सम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स ऑल्सो. लेट अस पे अटेंशन. a to the power m and bracket to the power n. मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा a का पावर कौन है? m है. और इस पूरे नंबर का, यू कैन सी द ब्रैकेट, एंड इस पूरे नंबर का या फिर इस पूरे जो कुछ हमें क्वेश्चन दिया है, इसका पावर क्या है? n है. मतलब पावर का पावर, तो उसमें क्या होगा? पावर के पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन सी दैट a to the power m into n. पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा. पावर बढ़ते जाएंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा. वी कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज 10 to the power 3 and 3 to the power 7, और वापस 3 का पावर 7 दिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 to the power 3 multiply by 7, that is 10 to the power 21. 21 कैसे आया? 3 multiply by 7, that is 3 sevens are 21. Understood? Next, law number 4, which will be very easy over there, but many of the time students are getting confused over there. बहुत easy है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी बार students confuse हो जाते हैं. रूल नंबर 4 and 5 में क्या है देखते हैं. चलिए, a to the power 1 is always a. हर नंबर का पहला पावर वही नंबर होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी भी नंबर का पहला पावर, मतलब उसका पावर अगर 1 दिया होगा, देन दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ. उसका आंसर क्या रहेगा? नंबर वही नंबर रहेगा. इसका मतलब यहां पर अभी क्वेश्चन आप देख सकते हो, दैट इज 17 to the power 1. 17 to the power 1 मतलब क्या? 17 का पावर 1 है. इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ? 17 itself. And that is the reason all the numbers are having powers over there. सभी नंबर्स को पावर हम नहीं लिखते मतलब उसका पावर कितना है? 1 है. Got it? चलिए आगे बढ़ेंगे. That is law number 5. What is the law number 5? I already told you students are confusing between 4 and 5. What is 5? a to the power 0. अगर पावर 0 होगा तो उसका आंसर कितना है? 1 होगा पावर, तो उसका आंसर वही नंबर रहेगा. पावर 0 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा. 2000 to the power 0, answer will be 1. Answer will be 1. Do not forget over there. 34 to the power 0. 34 to the power 0. Then that will be your 1. What is the answer for this? 1. I hope that you all are understanding this part. Do not forget to like, share and subscribe our channel. That is RK Output, and it is my request, and it is one of the benefit to the students that if they will like, share and subscribe our channel, we are there to provide you each and every solution related to science and maths. आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए. we are ready to prepare the videos on that. Okay, so like, share and subscribe our channel, that is RK Output. Without wasting time, let us go to the next rule, that is rule number 6. 6 नंबर का रूल क्या है हमारा? a by b, a divided by b to the bracket m. मतलब क्या है? पूरे ब्रैकेट का पावर कितना है? m. इसका ही मतलब क्या हुआ? जो न्यूमरेटर में उसका पावर भी m, और जो डिनोमिनेटर में भी है उसका भी पावर कितना है? m है. यू कैन सी दैट this will be m. Okay, so you can see that to the power 5 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. what is the question? 5 by 6 to the power 2. so इसका मतलब क्या हुआ? 5 to the power 2 and 6 to the power 2. so ये हो गया 25 divided by 36. understood everyone? next and last rule, which will be again very important and little bit confusing over there, but we are the students of RK Output, so we will not get confused over there. I am here to solve your each and every problem. Let us see the next part, that is a to the power minus m. a का पावर माइनस m रहेगा अगर आप उसको, उस पावर को आपको
प्लस करना है। मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस पावर है, बट आपको उसको अगर प्लस करना है, देन व्हाट इज द रूल, दैट इज यू हैव टू टेक दैट होल base as well as its power to the denominator, okay, and we have to put 1 in the numerator. Are you understanding? इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, we are doing the reciprocal over there, हम उसे उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, if any reciprocal you are doing, then the sign of the power is getting changed. अगर आप यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हो तो पावर का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज 9 to the power -2। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1/9 to the power 2 एडिशन प्लस आपका जो पावर है वो पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल कैसे हुआ, आई एम ऑलवेज सेइंग दैट इफ नथिंग इज देयर इन द डिनोमिनेटर इट मींस ऑलवेज देयर इज अ 1, ओके। अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमेशा वहां पर कौन है, 1 है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो गया, एंड ड्यू टू द रेसिप्रोकल your power is converting into the positive number over there. Understood? I hope that today you all have understood various laws of the indices. Even I have taken the various example based on that same laws over there. Now in next video we will be back with some new examples. We will be back with some complicated example in which you have to use more than 1 or 2 laws. यहां पर हमने जो एग्जांपल्स दिखे, हमने हर एक एग्जांपल में एक ही लॉ को यूज किया, हर एक एग्जांपल में एक लॉ को यूज किया, बट ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ यू आर गिविंग वेरियस एग्जामिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द मैथ्स, सो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि वन क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यूजिंग वेरियस लॉज ओवर देयर, ओके। एक से ज्यादा लॉज का वहां पर यूज करके हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। Understood? I hope that you all have understood this part. Try to practice the questions based on the laws of indices, so it will be easy for you. Once again, I am reminding to all, like, share and subscribe our channel, that is RK Output. Put your topics in our comment section, so we will make the video on that. हमें आप कमेंट सेक्शन में आपका टॉपिक भेजिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।